Hello students, as we were discussing about the Ruqayya Sakhawat Hussain and her dream about the Ladyland. So, she was the lady who belonged to the rich family, and she knew how to write and read the Urdu. Then when she was 25 years old, she wrote a story. Sorry, when she was 25 years old, yes, she wrote a story which title was the Sultan's Dream in 1905 to, and she also practices about English skills. And the story was aimed about the woman which called Sultan who reaches a place called Ladyland. So that's why Ruqayya Shawkat Hussain was also know the Ladyland. चलो लेडीलैंड यहाँ जगह का नाम है. तो लेडीलैंड का मतलब यहाँ पर क्या है? द प्लेस वेयर वुमेन आर फ्रीडम, दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे कैन fulfill their dreams and they can achieve the new targets. This is the meaning of the Ladyland. Okay, so and one is the sister of the Ruqayya Sakhawat. She is the Saraha. Okay. And the Ruqayya Sakhawat Hussain was dreaming of women flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. It means when the girls are only allowed to go to school, even not they are going to school properly, the Ruqayya Sakhawat Hussain flying planes and driving the cars. Okay. And she also get her education in proper way. Okay. And she also help to educate others. And in 1910 she started a school for girls in the Kolkata. In 1910 she started a school where in Kolkata. Okay. And here about the one new story. In those days, women were being not educated. Later, I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? Then I had a dream. I was reading the manuscript of Chaitanya Bhagavata, the life of a saint. Later in the day, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagavata here. When I asked for it, bring it in. He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job hidden it. Okay, this is the story belong to the here. So Raj Sundari Devi. Raj Sundari Devi belonged to the West Bengal, and it was the story of the before 200 years ago. Okay, and her she wrote the her book titled
Amar Jaban. It was the first Indian woman who wrote about any autobiography. हुआ। चलो अब यही बात कर रहे थे हम। हाँ, राजसुंदरी देवी was telling about herself when she started working at dawn and up to midnight. I would learn to read and I would read a religious manuscript. I was, yes, unlucky though that women were not educated. It means now we are talking about the Raj Sundari Devi. Raj Sundari Devi who wrote her autobiography in अमर जबान। अच्छा, और वो और बात कहते हैं कि उन्हें क्या था, और एक चैतन्य भागवता की बात कर रहे हैं जो इसमें लाइफ ऑफ द संतों की जो इसमें लाइफ होती है, और अपने हस्बैंड की बात कर रहे हैं कि वो भी अपने वहाँ पर लाए थे करके। अच्छा, तो ये इनने एक बुक देखी है। इट वॉज ए जॉब हेडिंग इट फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स। ओके, माई इलेक्ट सन वॉज practicing his alphabets at that time. I hid one of them as well. At times I went over that trying to match letters from the page with the letters that I remembered. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days with tremendous care and efforts, and over a long period of time I learned how to read. इट मीन्स ये क्या कर रही हैं राज सुंदरी देवी, कह रही हैं कि जो चैतन्य भागवता था, लाइफ ऑफ द सेंट वाली जो बुक्स थी, उससे मैंने क्या सीखा, लगभग पढ़ना लिखना सीखा, अल्फ़ाबेट्स को उससे मैच करना सीखा। ये बात कर रही हैं जब क्या करते उसके हस्बैंड वहाँ उसको रख जाया करते थे, भूल जाया करते थे। इस टाइप की इसमें एक स्टोरी बताई गई है। अच्छा, और उसके बाद कहा गया कि आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स राज सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भागवता थ्रू हर ओन राइटिंग। शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइव्स इन दोज डेज। राज सुंदरी देवी wrote about her everyday life experience in details. There were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit डाउन एंड ईट। तो राज सुंदरी देवी क्या कहती हैं, तो मैंने क्या कर लिया था, जो चैतन्य भागवत था उससे मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया था, कैसे पढ़ते हैं करके। और उसमें क्या किया था, शी वॉज हार्ड वर्कर लेडी। कहते हैं हमें क्या हुआ, कभी भी ऐसे रेस्ट का टाइम नहीं मिलता था, फिर भी मैंने क्या कर लिया था, ज़्यादा पढ़ लिया था। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। टॉकिंग अबाउट द स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। अब प्रेजेंट टाइम की अगर स्कूलिंग अब और एजुकेशन की बात अगर हम करेंगे तो प्रेजेंटली मोस्टली schools only for the girls, and girls are also allowed to take admission in the another schools है, co-ed schools है। हम बहुत जगह देखते हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ से रिलेटेड जो co-ed schools होते हैं वो कहीं भी एडमिशन उसमें ले सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। अच्छा, और उससे वाला इसमें देखो और कहा गया कि हियर टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल्स इन लार्ज नंबर्स, येट एज वी सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। इंडिया हैज अ सेंसस एवरी 10 years which counts the whole population of the country. I also gather detailed information about the peoples living in the India, their age, schooling, what work they do, and so on. We use this information to measure many things like the number of the literature people and the ratio of men and women. तो क्या कहता है, इंडिया में हर 10 years में क्या होती है, सेंसस होती है। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन फॉर अस, इंडिया हैज द सेंसस एवरी 10 years। ओके, अब उस 10 years की उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं कि फैमिली में से कौन कौन स्कूल जा रहा है, गर्ल्स जा रही है, गर्ल्स कौन से स्कूल में जाती है, बॉयज़ कौन से स्कूल में जाते हैं, और उनका क्या एज क्या है उनकी, और क्या काम करते हैं, इस टाइप से क्या होती है। और उससे हमें उसका एक लेटेस्ट जो लिटरेसी का रेशियो है उसका भी पता चल जाता है, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या है करके। अच्छा, अब उसके बाद कहता है कि अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मैन। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स,
Let us talk about the schooling and education today. So, in India, after every 5 years, we have the census. Census means official counting of the population is known as the census. It held after every 10 years. And there are so many data asked in the census. I like how many girls and boys at our home, and who is going to schools, what is their age. It means according to census we receives many other data. पॉपुलेशन से हमसे क्या मिलता है, अदर डाटा भी मिलते हैं कि वहाँ का लिटरेसी रेशियो कितना है, और उसके बाद वहाँ सेक्स रेशियो कितना है, मेल और फीमेल का रेशियो कितना है. सो वी हैव गिवन द डाटा ऑफ द 1961. वहाँ पर क्या कहा गया है कि 40% ऑफ द ऑल बॉयज एंड मैन वर लिटरेट. ओनली 40% है. जब कि ये डाटा आप कहाँ देखेंगे, अगर 2001 में इसी डाटा को देखते हैं तो 76% है फॉर द बॉयज एंड 54% फॉर द गर्ल्स. दे आर द लिटरेट. और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, गर्ल्स और बॉयज दोनों का लिटरेसी रेट तो बढ़ है, बट स्टिल देयर इज द गैप बिटवीन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेशियो. अच्छा, आपको हमें एक नीचे एक ये टेबल दिया गया है, इसमें जो एससी और एसटीज का एक रेशियो बताया गया है कि, और गर्ल्स का एंड और अदर जो ऑल कैटेगरीज हैं कि लगभग कितने परसेंट लोग क्या करते हैं, स्कूल को लीव करते हैं. ये एक रेशियो है. सी हियर एट द प्राइमरी लेवल इट मीन्स 1 to 5th. हम मानते हैं कि अगर क्या करते हैं 34% टोटल उसमें स्कूल लीव करने वाले जो हो जाते हैं, तो उसमें से एससी के लगभग होते हैं 37%, और यहाँ पर एवरेज 34% है, और एसटी के कितने हैं 49% है. अगर गर्ल्स की बात करें तो लगभग 29% गर्ल्स भी क्या कर रही हैं, ये हमारे स्कूल को छोड़ रही हैं. तो इसमें 36 एससी गर्ल्स हैं और 49% कौन है यहाँ पर 49% हमारी एसटी गर्ल्स हैं, और टोटल कितने होगी 31 एवरेज परसेंटेज है. और एलिमेंट्री एजुकेशन में देखें तो 6 to 8 वाले लेवल में हियर इज द 52%. अच्छा, यहाँ इतना बड़ा रेशियो बढ़ते जा रहा है देखिए. और यहाँ पर देखेंगे 57% एससी बॉयज़ हैं, और 69% कौन है उसमें से एसटी बॉयज़ हैं. और गर्ल्स में देखेंगे तो 53 टोटल रेशियो है, तो इसमें से हम देखेंगे 62% कौन है, ये एससी गर्ल्स हैं, और 17% कौन है एसटी गर्ल्स है, आदिवासीज. और टोटल कितना है इनका रेशियो, लगभग 52. एंड द सेकेंडरी लेवल 9-10 में 61% है लगभग, और उसमें से 17% बॉयज़ एंड 78% एसटी बॉयज़, 17% एससी बॉयज़. और गर्ल्स में 65% मान लेते हैं तो 76 और 81% का दिया गया है. टोटल कितना हो गया, एवरेज 63 कहा गया है. तो इसका मतलब क्या हो गया, इतने लोग लगभग क्या कहते हैं ये छोड़ने वाले हैं स्कूल को. अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यू हैव प्रोबेबली नोटिस्ड इन अबव टेबल दैट एससी एंड एसटी गर्ल्स लीव स्कूल से एट अ रेट दैट इज़ हायर देन अदर कैटेगरीज ऑल गर्ल्स है. देख रहे हैं उनमें अदर गर्ल्स से हम क्या कर रहे हैं, एससी और एसटी के लेवल क्या हैं, ज़्यादा हैं जो स्कूल छोड़ते हैं. दिस मीन्स दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासी बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रिमेन इन schools. The 2001 census also found that Muslim girls are less likely than Dalits and Adivasi girls to complete primary education. It means जो हमारा 2001 का जो हमारा डाटा मिल रहा है according to census of the 2001, more Muslim girls are leaving the schools in compared to the SC and STs, while a Muslim girls is likely to stay in schools for around 3 years. गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्पेंड अराउंड 4 years इन स्कूल्स है. तो जो कहता है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो क्या कहते हैं लगभग 3 years तक अपने स्कूल में रहती हैं, और अदर से क्या है उनसे 1 more year 4 year तक अपने कहाँ रहते हैं, स्कूल में रहना पसंद करते हैं. देर आर सेवरल रीजन्स व्हाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज लीव स्कूल्स. मनी पार्ट्स ऑफ कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज मनी पीपल even be proper schools
not teachers who teach on a regular basis. If a school is not close to people's home, then there is no transport likely bus or vans. Parents may not be willing to send their girls to schools. Many families are too poor and unable to bear the cost of education and children. Boys may get preference in this situation. Many children also leave schools because they are discriminated against by their teachers and classmates, just like Om Prakash Balmiki was. So here we are discussing about the why the uh, girls and boys are leaving the schools. It means there were the several reasons. अलग अलग कारण क्या हैं? Somebody parents are too poor, they cannot bear the investment on the education. वो क्या कर सकते हैं? पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं. कभी कहीं पे क्या है, द स्कूल इज़ फार अवे फ्रॉम द रेजिडेंस. जो स्कूल है बच्चों के रहने के स्थान से बहुत थोड़ा क्या है, दूर दूर हैं. समटाइम्स पेरेंट्स वांट टू देयर चिल्ड्रन विल बी वर्क विद देम. उनके साथ अब बच्चे काम करेंगे. कभी कभी ये भी सोचते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा देते हैं. कभी कभी कहता है कि बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है. तो कभी कभी क्या होता है, उनके जो अदर जो क्लासमेट्स हैं उन्हें टीच करते हैं बिकॉज दे आर पुअर एंड लेस फैशनेबल. तो दीज आर द रीजन्स है. ओके, और ये सब क्या है, ये सब कास्टिज्म के कारण उन्हें चिढ़ा जाता है. इसलिए वो लोग क्या करते हैं, स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं. और कभी कभी क्या है, स्कूल में टीचर्स नहीं है. टीचर्स नहीं है तो स्कूल जाके बच्चे क्या करेंगे, इसलिए भी लोग क्या करते हैं, उनको भेजना पसंद नहीं करते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक ये बॉयज़ और गर्ल्स का एक परसेंटेज का रेशियो दिया गया है 34% और 37% का. ये SC बॉयज़ का 37% और इसका मतलब क्या हो गया, इनका 3% परसेंटेज क्या है, इनका 3 का और ज़्यादा है. तो यहाँ पर अब बात हम जो करेंगे वुमेन्स मूवमेंट. वुमेन्स मूवमेंट मीन्स है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. द वुमेन वर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर देयर राइट्स. विच टाइप ऑफ द राइट्स? They had not right to vote, they had not right to go to the temples, and they had not right to go to schools, and still they are facing the teaching at their houses also, and they are exploited by their husbands, by their family members. Then it means sometimes they are also exploited by the government because their rights have not given to them. Okay. Women and girls now have the right to study and go to schools. There are two other spheres like legal reform, violence and health where the situation of women and girls has improved. तो यहाँ पर क्या कहता है, जो राइट टू स्टडी और राइट टू गो टू स्कूल, तो गर्ल्स को क्या है, लगभग अभी मिला हुआ है. ओके, देर आर. अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, जो गर्ल्स ने क्या कर रखा है, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट पाया है कि उनकी जो हेल्थ कंडीशन है और उसके जो उन्हें इंडिविजुअली कलेक्टिवली है जो स्ट्रगल बिलिंग. तो कभी कभी उन्हें क्या करना पड़ता है, फैमिली में अपने फैमिली मेम्बर से क्या करना पड़ता है, उससे कहा सुनी करनी पड़ती है. दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट है. इस टाइप के जो उन्हें अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल किए हैं, अपने आप का जो डेजिनेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपना जो मान सम्मान के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, दीज आर नो, अपने राइट्स के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, दीज आर नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट है. इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट. मैनी मैन सपोर्ट वुमेन्स मूवमेंट एज वेल. द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्वड मेक्स इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट. इट मीन्स कभी कभी क्या होता है, इसको जो मैन होते हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि वुमेन्स को क्या मिलना चाहिए, देयर राइट्स शुड बी इक्वल टू द मैन. डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस. हियर आर सम क्लेम्स ऑफ दिस स्ट्रगल. तो क्या है, उनके जो राइट्स हैं, उनका जो डिस्क्रिमिनेशन दूर करना है, अवेयरनेस उनमें लानी है, इसके लिए भी क्या कर रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं. ओके, अब यहाँ पर क्या क्या है, डिफरेंट कंपेनियंस है, क्या क्या उनने मूवमेंट चलाए हैं, ये भी हमें क्या किया गया है, यहाँ पर डिस्कस किया गया है. ओके, अभी तो हम इतना ही करेंगे.
Hello students, as we are discussing about the schooling and education today, that the census of the India, census means population counting, जनगणना जिसको हम हिंदी में कह देते हैं, इट हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स इन इंडिया, जिससे हमें क्या पता चलता है, सेंसस में बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स में पूछे जाते हैं, कौन क्या करता है, कहाँ रहता है, कितनी एज लिमिट है, कितने लोग स्कूल जाते हैं, मेल एंड फीमेल का रेशियो क्या है, उससे हमें क्या पता, एक डाटा हमें मिल जाता है। ये बात हम कर रहे हैं। अभी जो हमें कहता है कि इससे एक अभी 15% ऑफ द ऑल गर्ल्स एंड वुमेन इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस 2001, these figures have grown to 76% of for the boys and men and 54% of the girls and the women। तो क्या कहता है, जो 1960s का जो सेंसस है, इसके अकॉर्डिंग अगर 2001 के सेंसस से हम कंपेयर करें तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है कितना हो गया है, 76% ऑफ द बॉयज़ का लिटरेसी रेट हो गया है टोटल मेल का, एंड जो फीमेल का रेशियो है 54% हो गया है, जो कितना था, ओनली 15% था उस समय था, कहता है 1960s के आसपास का। इट मीन्स हमारा जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ रहा है, पढ़ने लिखने वालों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब। दिस मेजर्स दैट प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन हु आर नॉट एबल टू रीड एंड हैव at least some amount of schooling has increased, but as you can also see the percentage of the male group is still higher than the female group. This gap has not gone away. So what he is saying, it is saying that the discrimination of the difference of between the male and female literacy ratio is still remaining in the society, which should not well for the society, it should be removed. So here is the table of the literacy rate. Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave schools from different social groups. Scheduled caste is the official term for the Dalit, the scheduled tribes is the official term for the Adivasis। जो हम क्या कहते हैं, SC और ST कहते हैं, SC आर नोन एज द दलित एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नोन एज द आदिवासी, तो इनको हम कह देते हैं। अब इनके क्या है, इनका यहाँ पर एक हमें रेशियो दिया गया है, ये 2003-4 का रेशियो दिया गया है। यहाँ क्या दिया है, ऑल बॉयज़ जो प्राइमरी 1 to 5 के हैं लगभग कितने हैं, 34, 52 एंड 61। अच्छा, जो 34 किसके हैं हमारे, ऑल बॉयज़ कहता है, और स्कूल लेवल से, अच्छा प्राइमरी में। और SC बॉयज़ कितने हैं, 37, ST बॉयज़ कितने हैं, 49, ऑल गर्ल्स कितने हैं, 29, SC कितने हैं, 36, और ये कितने हैं, 49। अच्छा, टोटल कितने हैं, 37। अच्छा, अच्छा क्या दिया गया है, एक रेशियो दिया गया है। What percentage of girl children leave schools at the elementary level, क्या दिया है, ये प्रॉब्लम टेबल